یہ جو شہر کراچی ہے، یہاں کے جو باسی ہیں یا جو یہیں پہ شروع سے رہا کرتے ہیں، انہوں نے شہر کے اندر بہت سارے نشیب و فراز ضرور دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ 92، 93، 94، ایون کہ 2007 تک کی بھی بات کریں تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو شہر تھا ایک دم سے روشن ہو جاتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کبھی کبھی یہ شہر کچھ سیکنڈز یا منٹس کے اندر اندر اندھیرے میں ڈوب جایا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ جو سیاسی حالات تھے یا بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے اسٹرائکس ہو جاتی، حالات خراب ہو جاتے اور روڈز کے اوپر سے ٹریفک غائب ہو جایا کرتا تھا۔ تو ایسے ہی 2005 2006 میں جب کہ حالات بہت زیادہ خراب تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں پیپلز چورنگی پہ ایک فیکٹری کے اندر کام کیا کرتا تھا، اور میرا جو گھر تھا وہ بفر زون سیکٹر 15A2 یا 3 کے اندر موجود تھا۔ ویسے عام طور پہ میرا جو کام تھا وہ رات کو 10-11 بجے ختم ہو جایا کرتا تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کام کے سلسلے میں رات کو 12-1 بجے بھی چھٹی ملا کرتی تھی۔ تو جس رات یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ خیر، میرا جو کام تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور میرا جو سیٹ تھا وہ چاہتا تھا کہ میں کام کو مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر جاؤں، پھر بھلے میں اگلے دن چھٹی کر لوں۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا بھی کنسائنمنٹ تھا، اس کا بھی پروجیکٹ تھا جو اس کو کمپلیٹ کرنا تھا، اور میں بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی ایمانداری سے جتنا سپورٹ ہو سکتا ہے اپنے سیٹ کو یا اپنے مالک کو دے سکوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اپنے اس ادارے سے نکلا تو رات کے تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ مکمل طور پہ روڈوں پہ سناٹا موجود تھا، اور دور دور تک نہ ہی کوئی بندہ دکھائی دے رہا تھا، اور نہ ہی کسی بھی قسم کی روشنی یا گاڑیاں آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ خیر، میں بمشکل یہ جو پیپلز چورنگی سے رائٹ سائڈ پہ مڑتے ہیں، یعنی جب آپ بفر زون نمک بینک کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، اس راستے سے جیسے ہی گزر رہا تھا تو گزرتے گزرتے مجھے ایسا لگا کہ جو لیفٹ سائڈ والا حصہ ہے یہ مکمل طور پہ تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یعنی کہ شاید اس ایریے کی، اس علاقے کی لائٹ بھی گئی ہوئی تھی، اور شاید اسی وجہ سے یہ ایریا بہت زیادہ سناٹے زدہ ایریا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حالانکہ میرا جو گھر تھا وہ اتنا دور نہیں تھا، لیکن یہ جو ایک ایک قدم تھا یہ 100 قدم کے برابر تھا، اور جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے مجھے عجیب سا خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اب جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب اس دور میں یہاں پہ آپ گزرا کرتے تھے تو ایک تو یہ جو روڈز وغیرہ ہیں یہ بہت زیادہ خراب تھے، دوسری بات یہ کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کی روشنی، ہوٹل وغیرہ موجود نہیں ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ آج کی بات کریں تو یہ روڈز وغیرہ مکمل طور پہ بن چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پراٹھے وغیرہ، چائے وغیرہ کے ہوٹل بہت زیادہ موجود ہیں۔ خیر، میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف یا اس روڈ کے راستے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے مجھے ایسا لگا جیسے میرے لیفٹ سائڈ پہ جو اوپر کا حصہ موجود ہے وہاں پہ کوئی پرندہ ہے، کوئی عجیب سی شے ہے جو مجھے بار بار آتی اور جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے کہ جب آپ چل رہے ہوں اور آپ کے لیفٹ یا رائٹ سے کوئی چیل، کوئی کوا، کوئی اس طرح کا پرندہ گزرے تو آپ کو ایک دم سے اس کے آنے جانے کا احساس ہوا کرتا ہے، ویسے ہی کچھ احساس میرے دل میں، میرے ذہن کے اندر موجود تھا، اور مجھے یہی لگ رہا تھا جیسے کوئی پرندہ ہے جو مسلسل میرے آگے اور پیچھے سے گزر رہا ہے۔ ویسے عام طور پہ یہ جو پرندے ہوتے ہیں یہ رات کے اوقات میں دکھائی نہیں دیا کرتے۔ اب تک میرا یہی خیال تھا کوئی پرندہ ہوگا، لہٰذا میں تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے مشکل سے 5 منٹ کا راستہ مزید طے کیا ہوگا کہ اس کے بعد جو منظر میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا یہ کچھ ایسا منظر تھا کہ جس منظر کو اگر میں خوفناک منظر نہ کہوں تو اللہ جانے اس منظر کو کیا کہا جائے گا۔ مجھے چلتے چلتے ایسا لگا کہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو کہ الیکٹرک کے یا شاید پھر PTCL کے تار وغیرہ موجود ہیں، ان تاروں کے اوپر کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے جو میرے ساتھ ساتھ میرے برابر برابر چلتی چلی جا رہی ہے۔ عام طور پہ بلی، چوہے یا اس طرح کی جو بھی مخلوقات ہیں وہ تاروں پہ اس طرح سے نہیں چلا کرتے۔ اگر کوئی پرندہ وغیرہ ہو تو وہ بھی تھوڑی دیر چلنے کے بعد اڑ جایا کرتا ہے۔ خیر، میں نے چلتے چلتے جب ترچھی نگاہوں سے یا مختلف طریقوں سے ویریفائی کرنے کی کوشش کی
तो ऐसा लग रहा था जैसे परिंदे के बजाय कोई बहुत ही लंबा, कोई बहुत ही बड़ा सा वजूद है जो मेरी ही रफ्तार से उस तार के ऊपर चलता चला जा रहा है। आप यकीन करें कि जब मैंने बाकायदा एग्जैक्टली उस तार की तरफ देखना शुरू किया तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ हो सकता है। मैंने देखा कि एक बच्चा जो कि 7 या 8 साल का होगा, जो कुछ अजीब सा पतला सा बच्चा था और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो आम बच्चों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही फुर्ती, बहुत ही तमीज़, महारत के साथ उस तार के ऊपर चलता चला जा रहा था और जितनी रफ्तार से ये जिस तरह मैं चल रहा था वो मेरे साथ साथ उस तार पे चल रहा था। एक तो इतने से बच्चे का इतनी ऊंचाई पे इस तार के ऊपर चलना ये बहुत ही हैरानकुन बात थी और दूसरी बात ये थी कि जब चलते चलते उस बच्चे की आंखों के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो एक लम्हे के लिए मुझे अजीब सा फील होने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे ये जो भी बच्चा है, इस बच्चे की जो आंखें हैं, इसकी आंखों की जो आई बॉल्स हैं ये मुकम्मल तौर पे या तो सफ़ेद हैं या इसकी आंखें आसान अल्फाज में ऊपर की तरफ चढ़ी हुई हैं। मैंने इधर उधर देखा, फिर दोबारा से ऊपर देखा कि हो सकता है जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये मेरा वहम हो, लेकिन आप यकीन करें वो बच्चा वैसे ही था, उसी रफ्तार से वैसे ही चल रहा था और वैसे ही उसकी आंखें जो थीं ये मुकम्मल तौर पर सफ़ेद आंखों का मंजर पेश कर रही थीं। एक तो रात का ये पहर, खौफनाक रोड, दूर दूर तक लाइट मौजूद नहीं और उस पर बच्चा कुछ अजीब तरीके से अजीब शक्लों के साथ मेरे साथ साथ चल रहा था। अब मुझे यकीन हो चला था कि ये या तो कोई जिन का बच्चा है या फिर जिसे आम ज़बान में छलावा कहा जाता है, ये कोई ना कोई छलावा ज़रूर है। आप यकीन करें कि मैंने जैसे ही अपनी रफ्तार को बढ़ाना शुरू किया तो वो भी मेरी ही रफ्तार के साथ साथ मज़ीद तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो भी कुरानी आयात, सूरतें वग़ैरह मुझे याद थी मैंने उनकी तिलावत की और तिलावत करते करते मैं आगे बढ़ता चला गया। मेरा ख्याल है कि 5-7 मिनट तक मुझे मुसलसल उसके साथ होने का एहसास रहा, लेकिन जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो अल्लाह का शुक्र है वो बच्चा वहाँ से गायब हो चुका था। अब हाँफते काँपते जैसे तैसे मैंने ये एरिया क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद जब मैं आगे जाके लेफ़्ट पे मुड़ा जहाँ पे मुझे जाना था, यानी जहाँ पे मेरा घर मौजूद था, तो मुड़ते मुड़ते जब मैंने पलट के वापस उन तारों या उस एरिया की तरफ देखा तो मुझे दोबारा से उस बच्चे के वहाँ उन तारों पे होने का एहसास हुआ। लेकिन सच्ची बात यह कि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि मैं उस बच्चे को मज़ीद देख पाता या उसकी आंखों में आंखें डाल के अपने बहादुर होने का सबूत देता। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ देर बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैं खैरियत से अपने वालिदैन के पास था और ये वो आखिरी रात थी जिस रात मैंने उस रास्ते से आने का इंतखाब किया था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये कहानी 1986 की कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जब हमारे गांव में बिजली मौजूद नहीं थी। शदीद सर्दी चल रही थी, गालिबन जनवरी का अख्तिताम था और फरवरी शुरू होने वाला था। रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम था और इत्तेफाक से मैं अपने घर पे न सिर्फ अकेला मौजूद था बल्कि मेरे जो घर वाले हैं इत्तेफाक से एक दूसरे गांव के अंदर किसी तकरीब को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। वैसे आम तौर पे मैं कोशिश किया करता था कि अपने घर के अंदर अकेला ना रुकूं, क्योंकि एक तो ये जो घर था ये प्री पार्टीशन घर था, आप एक छोटी सी हवेली भी कह सकते हैं, और हमारे घर के बारे में पूरे मोहल्ले में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर थीं। खैर जैसे जैसे रात बढ़ती चली जा रही थी वैसे वैसे सर्दी में इजाफा हो रहा था और अब लग रहा था जैसे जैसे रात बढ़ रही है सर्दी के साथ साथ मेरे खौफ में भी इजाफा हो रहा है। हमारा जो गांव था, इस गांव में एक तो उस दौर में बिजली मौजूद नहीं थी, इसके साथ साथ ये जो रोड थे ये कच्चे पक्के रोड थे और आमतौर पे जो लोग थे वो मगरिब होते ही अपने अपने घरों में चले जाया करते थे। खैर मैंने जब खाना वगैरह खाया,
खाना खाने के बाद जैसे ही मैं अपनी चारपाई के ऊपर लेटा तो मेरी आदत थी, जब मैं चारपाई के ऊपर लेटता था तो चारपाई पे लेटने से पहले एक गद्दा नीचे और एक लेटने के बाद अपने ऊपर डाला करता था। बात ये थी कि जो हमारा गांव था ये एक खुला गांव था, इसके अतराफ में खेत ही खेत मौजूद थे, तो दूसरे गांव और दूसरे इलाकों की निस्बत हमारे गांव के अंदर बेतहाशा सर्दी हुआ करती थी। अभी मुझे लेटे हुए मुश्किल से 10 या 15 मिनट गुजरे होंगे। एकदम से मुझे एहसास हुआ जैसे जो हमारी छत है उस छत के ऊपर कोई भागता हुआ चलता चला जा रहा है। जो भी छत के ऊपर मौजूद है, कभी वो एक तरफ से दूसरी तरफ भागता है, कभी दूसरी तरफ से इस तरफ भागता है। कोई ना कोई ज़रूर छत के ऊपर मौजूद था जो मुसलसल भाग के मेरे लिए परेशानी का बाइस बन रहा था। अब शुरू में जब मुझे भागने की आवाज़ आ रही थी, इससे पहले कि मैं ऊपर जाता और वहाँ पे जाके देखता, ये जो भागने की आवाज़ थी एकदम से ऐसा लगा एक अजीब सी आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। जैसे कि जो भी छत के ऊपर मौजूद है, पहले वो वहाँ पे भाग रहा था, अब बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे किसी पलंग को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के साथ रगड़ के खींचा जा रहा है। और जब छत के ऊपर किसी चीज़ को या किसी पलंग को खींचा जाता है तो जिस तरह की आवाज़ नीचे सुनाई देती है, वैसे ही आवाज़ मुझे मुसलसल सुनाई दे रही थी। एक के बाद दीगरे ये जो आवाज़ें मुझे आना शुरू हुई थी, सच्ची बात यह है कि इन आवाज़ों की वजह से मेरे खौफ में मज़ीद इजाफा हो चुका था। अच्छा, साथ साथ एक और बात थी, और वो बात ये थी कि जो हमारे घर की छत थी उस छत के ऊपर मुख्तलिफ दरख्तों के पत्ते या शाखें झुके हुए थे। हमारे घर के अतराफ़ में जितने भी बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे, तकरीबन तमाम के तमाम दरख्तों की शाखें हमारे घर की छत के ऊपर झुके हुए थे। अब जब ये आवाज़ें आना शुरू हुईं तो उनके कुछ देर तक खामोशी हो गई, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे छत के ऊपर जो भी सूखे हुए पत्ते मौजूद हैं वो हवा में उड़ते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ चलते चले जा रहे हैं। एक तो शदीद सर्दी, ऊपर से जो खामोशी थी, इस खामोशी में जो भी आवाज़ें थीं ये मुकम्मल तौर पे वाज़े सुनाई दे रही थी। अभी जबकि मैं इन आवाज़ों के शहर से निकलने ही वाला था कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ अजीब सी मुझे पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जो भी छत के ऊपर मौजूद है अब उसने बाकायदा वॉक करना शुरू कर दी है, और जैसे जैसे वो कदम रख रहा है या कदम रख रही है तो उसके कदम रखने पे पायल और घुंघरू की आवाज़ मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। अब जब मुझे ये पायल या घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई तो एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, और बाहर निकल के सामने जहाँ पे मेरी खाला रहा करती हैं क्यों ना उनके घर चला जाऊँ और कोशिश करूँ आज रात वहीं पे ही क़याम कर सकूँ। लेकिन बात ये थी कि कुछ अरसे से मेरी खाला के और मेरे घर वालों के जो ताल्लुकात थे वो कदरे ख़राब चल रहे थे। शायद इसी वजह से मैं उनके घर जाने से कासिर था। मैं मुसलसल आंखें बंद करके करवटें बदल बदल के अपने आप को बहला के सुलाने की कोशिश कर रहा था, और मैं चाह रहा था बस जैसे भी मेरी आंख लग जाए, क्योंकि जब आपकी आंख लग जाती है तो आपको नहीं पता होता कि आपके अतराफ़ में कौन मौजूद है, कौन सी मखलूक़ात हैं जो अपनी प्रेजेंस आपको शो करना चाहती हैं। वैसे ही मैं आंखें बंद करके मुसलसल वेट कर रहा था कि कब मेरी आंख लगे और फिर मेरी आंख सुबह खुले। अच्छा, एक बात ये भी थी कि जो मेरा कमरा था उस कमरे के अंदर जो एक बड़ी सी खिड़की मौजूद थी, अगर आप उस खिड़की को खोलें तो वो गैलरी की तरफ खुला करती थी। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ अब मुझे लग रहा था जो पायल और घुंघरू की आवाज़ मुझे छत के ऊपर से आ रही थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खिड़की के बिल्कुल बराबर में जो गैलरी मौजूद है अब वहाँ से मुसलसल आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा था जो भी अब से कुछ देर पहले छत के ऊपर मौजूद था अब वो बराह रास्त गैलरी में बराबर मेरे सामने मौजूद है, और वो मुंतज़िर है कि कब मैं खिड़की खोलूं और वो मेरे सामने एकदम से आ जाए। लेकिन मेरा इस कदर खौफ से बुरा हाल था कि खिड़की खोलना तो बहुत दूर की बात है, मैं उस तरफ देखना भी नहीं चाहता था। इसी दौरानिए में जबकि मैं मुसलसल खौफ में मुब्तला था, आहिस्ता आहिस्ता करके जो मेरे कमरे की खिड़की थी ऐसा लगा जैसे उसकी कुंडी को किसी ने अपने हाथों से खोलना शुरू किया है। हालांकि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो खिड़की की कुंडी थी ये ना सिर्फ अपनी जगह से हटी
बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो खिड़की थी ये पीछे की तरफ हटती चली गई। यानी जो भी खिड़की की बैक साइड पे मौजूद था वो अपने हाथों से इस खिड़की को खोलने के बाद इसको पीछे कर रहा था। जैसे जैसे खिड़की पीछे हो रही थी वैसे वैसे गैलरी का जो नज़ारा है वो मेरी आंखों के सामने मौजूद था और मुझे गैलरी का जो हिस्सा था ये मुकम्मल तौर पे दिखाई दे रहा था। अब जब खिड़की खुली तो खुलने के बाद मुझे जो गैलरी का हिस्सा जितना भी नज़र आ रहा था बज़ाहिर वहाँ पे सामने कोई भी मौजूद नहीं था और मैं अब तक सोच रहा था कि आखिर कौन है जो अपने हाथों से इस खिड़की को न सिर्फ खोल चुका है बल्कि मेरे सामने अब तक नहीं आया है। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे शायद कोई चोर है जो उस तरफ मौजूद है और वो हमारे घर से, हमारी हवेली से कोई ना कोई चीज़ चोरी करना चाहता है। इसी दौरानिए में जबकि मेरी नज़रें मुसलसल खिड़की के ऊपर थीं या गैलरी की तरफ थीं, मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कोई वजूद एकदम से खिड़की के सामने आना शुरू हुआ है। जैसे जैसे वो वजूद खिड़की के सामने आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे जो भी खिड़की के उस तरफ मौजूद है उसने लाल कलर का लिबास पहन रखा है और शायद जो लिबास उसने पहन रखा था यह दुल्हनों का यह उरूसी लिबास था। जो भी औरत या लड़की वहाँ पे मौजूद थी वो दुल्हन के लिबास में मलबूस थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है। बेतहाशा ज्वेलरी या इस तरह के जेवरात उसने पहन रखे थे। उसके हाथ भी मुकम्मल तौर पे मुझे नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों पे बेतहाशा चूड़ियाँ मौजूद हैं। अब तक उसका जो चेहरा था वो उसके चेहरे के सामने घूंघट होने की वजह से न सिर्फ छुपा हुआ था बल्कि अब तक मैंने उसके चेहरे को ज़रा सा भी नहीं देखा था। इसी दौरानिए में ऐसा लगा जैसे एकदम से हवा चलना शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता करके उसका जो घूंघट है वो उसके चेहरे से हट के पीछे की तरफ जाता चला जा रहा है। जैसे जैसे उसका चेहरा मेरे सामने आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही हसीन और जमील लड़की खिड़की के उस पार मौजूद है और वाकई में कोई दुल्हन है जो गलती से हमारी इस हवेली में, हमारे इस घर में दाखिल हो चुकी है। अजीब बात ये थी कि इस अंधेरे में भी मुझे मुकम्मल तौर पे ये सब कुछ दिखाई दे रहा था जैसे कि जानबूझ के मुझे कोई मंजर दिखाया जा रहा हो। इसके साथ साथ वो जो दुल्हन खिड़की के उस पार मौजूद थी उसकी आंखें इस कदर चमक रही थीं कि इस अंधेरे में भी वाज़ेह तौर पे मुझे लग रहा था जैसे उसकी आंखें न सिर्फ बड़ी बड़ी आंखें हैं बल्कि उसकी आंखों में कुछ अजीब सी रोशनी सी मौजूद है। इसी दौरानिए में जबकि मैं उसके चेहरे पे मज़ीद गौर कर रहा था देखते ही देखते उस दुल्हन ने मेरी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू किया। जैसे जैसे वो दुल्हन मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी मैं मुकम्मल तौर पे उसके हुस्न के सहर में गिरफ्तार होना शुरू हो चुका था। देखते ही देखते जबकि मैं मुकम्मल तौर पे उसके सहर में गिरफ्तार हो चुका था तो एकदम से उसकी ज़बान ऐसा लगा उसके मुंह से बाहर निकलना शुरू हुई है। देखते ही देखते उसकी जो ज़बान थी पहले 1 इंच फिर 2 इंच इसी तरह तकरीबन 6 से 7 इंच उसकी ज़बान न सिर्फ उसके मुंह से बाहर निकली बल्कि बाकायदा उसकी ज़बान इस कदर लंबी हो चुकी थी कि लटकने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन तक या उसके सीने तक बआसानी पहुंच चुकी है। ये वो मंज़र था जो मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन मंज़र था और इससे ज़्यादा खौफनाक मंज़र मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद कभी भी ना ही देखा था और ना ही कभी सुना था। अल्लाह जानते कि मैंने जैसे तैसे अपने आसाब पे काबू किया और फ़ौरन से मैंने अपने कमरे से बाहर की तरफ भागने में आफियत जानी। ये जो मेरे कमरे से बाहर तक का यानी मेरी खाला के घर तक का सफ़र था जो कि मुश्किल से 2 या 3 मिनट का सफ़र था ऐसा लग रहा था जैसे 2 या 3 साल के सफ़र में तब्दील हो चुका है। मैं मुसलसल कुरानी आयत पढ़ रहा था और जैसे तैसे करके जब मैं अपनी उन खाला के घर में दाखिल हुआ जिनसे हमारे काफ़ी अरसे से इख्तलाफात चल रहे थे तो वहाँ जाके मैंने सुकून का सांस लिया। ये जो रात थी ये मेरी ज़िंदगी की खौफनाक तरीन रात थी और इस पूरी रात न सिर्फ मुझे शदीद बुखार रहा बल्कि मुसलसल मेरी वही खाला जो काफ़ी अरसे से मुझसे नाराज़ थी मेरे ऊपर दम दुरूद करती रहीं। कहा जाता है जो हमारी हवेली थी या जिस घर में हम रहा करते थे यहाँ पे प्री पार्टीशन दौर में भी इस तरह की एक औरत को या इस तरह की एक चुड़ैल को ना सिर्फ लोगों ने अपनी आंखों से विटनेस किया था
बल्कि अक्सर इस दौर में भी, जिस दौर में ये वाक़या हमारे साथ पेश आया था, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे गांव वाले, ख़ास तौर पे हमारे गांव के जितने भी बुज़ुर्ग थे, उनका भी यही मानना था कि उन्होंने अपनी आंखों से हमारे घर की छत पे एक चुड़ैल को बाकायदा घूमते हुए देखा है। आज भी वो हवेली, वो घर हमारी कस्टडी में है। आज भी हम लोग उसके मालिक हैं। और आज भी अक्सर ऐसा होता है कि मोहल्ले वाले इस तरह की शिकायत करते हैं कि रात में आपकी छत के ऊपर एक औरत दुल्हन के लिबास में खड़ी हुई थी।